हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा। देखिए, हम केमिकल बॉन्डिंग स्टडी कर रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्डिंग, कॉसेल एंड लुईस अप्रोच ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। इससे पहले हमने डिस्कस करा था कि केमिकल बॉन्ड्स होते क्या हैं, केमिकल बॉन्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते क्यों हैं, केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं या मोड ऑफ बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, उसमें हमने आयनिक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करा। नाउ लेट्स सी कोवलेंट बॉन्डिंग, कॉसेल एंड लुईस अप्रोच। कोवलेंट बॉन्ड्स generally, covalent bond is formed between two atoms by mutual sharing of their outer electrons or valence electrons so as to complete duplet or octet in the outermost orbit. Duplet means to complete outermost 2 electrons and octet means to complete outermost 8 electron. Duplet is generally observed in hydrogen, lithium, beryllium. Okay, or you can define another way. Covalent bonding defined as the attraction forces between two atoms which are interact to each other by mutual sharing of electrons on mutual sharing of equal number of electrons basically. और ये भी बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जनरली कोवलेंट बॉन्ड बनता कहाँ पे है। तो देखिए, कोवलेंट बॉन्ड्स are formed between two non-metal atoms. Generally, non-metal atoms or between any two atoms which have their electronegativity difference less than 1.9 or electronegativity difference less than 1.9 or close to 0. That means जब कभी कोई दो ऐसे एटम आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑलमोस्ट सिमिलर हो या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस हो, then there may be possibility of the sharing of their valence electrons, mutual sharing of valence electrons. और जैसे आपने आयनिक बॉन्ड में एक वर्ड पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी बेसिकली डिफाइंड एज the number of valence electrons take part in mutual sharing to form a covalent bond. क्योंकि मैंने कहा जब कभी भी कोई बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, then there is the mutual sharing of electrons. देखिए, जैसे आपने समझा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, then you know in the hydrogen there is a one valence electron. जब आप किसी एटम में उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हो तो इसे हम उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, ये बेटा हाइड्रोजन के दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 1, लेकिन हमें पता है इनर्ट गैस कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए hydrogen can share one electron of this hydrogen and it can share one electron of this hydrogen. Here you can say covalency of hydrogen is 1 and both hydrogens shared by one electron, so there is the formation of single bond. When each atom share one electron, its covalency is 1 and the bond form is a single bond. Okay, if we talk about some other examples, like when sharing of electrons, sharing of valence electron takes place by 2 2. If we talk about oxygen, oxygen has its configuration 2 6, and suppose we are talking about the formation of O2. This oxygen also have 2 and 6 electrons in the outermost, 6 electron in the outermost. So show the 6 electrons in its outermost orbit or valence shell orbit like this. This is the Lewis dot structure. Now, if we share 2 electrons of both, then both oxygen atoms bonded together by double bond, and the covalency of oxygen is 2. तो कभी अगर 1 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर्ड होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 होता है बेटा इसका एटॉमिक नंबर। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, एंड दीज 5 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन शो एज वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन। इट्स अ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप इसके 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो
then you get a triple bond. दो इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड. सो दीज आर सम एग्जांपल्स बाय व्हिच फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स आर टेक प्लेस. सपोज ये तो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको बेटा बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, जिनमें एटम्स सिमिलर हों, होमोन्यूक्लियर कहलाते हैं. Formation of HCl you can understand. In case of HCl, hydrogen has 1 electron in the outermost, chlorine has 7 electron in the outermost valence shell. This is the least order structure, and if these both share 1 electron with each other, there is the formation of HCl, single bond, and covalency of hydrogen is 1 and covalency of chlorine is also 1. तो बेटा जो कोवलेंट बॉन्ड्स है जनरली वहाँ पे बनते हैं या तो सिमिलर टाइप एटम्स होंगे. सिमिलर टाइप एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का जो इनका डिफरेंस है वो लगभग 0 होता है. और अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स हो, इनको बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 नहीं होती, बट इनके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट सेम है. हाँ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे. तो ये है बेटा कोवलेंट बॉन्डिंग बनने का तरीका कि कोवलेंट बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स होते क्या है, कोवलेंसी क्या है. बट अगर हमसे कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में डिटेल स्टडी की बात करता है, तो हमें यहाँ पे फिर बेटा कुछ और चीज़ें स्टडी करनी होगी इन डिटेल, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोवलेंट molecules. कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? हाउ कैन यू फाइंड आउट लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मल चार्ज, इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस क्या हैं? और इसके बाद बेटा फिर हम डिस्कस करेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कि ये क्या होता है. ठीक है, तो इनको कैसे करेंगे? यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन जस्ट वॉच अबाउट द कोवलेंट बॉन्डिंग एंड आयनिक बॉन्डिंग. कोवलेंट बॉन्ड्स क्या है? हाँ, अगर हो सके आपसे, देन यू कैन कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स of ionic and covalent compounds. Okay, so in the next part, next video, I will discuss about all these. Okay, so till then wait and watch this one and refer the book for the further study and collect the doubts. Okay, thank you, thanks a lot.